قربان اس میں جان بھی قربان ہے، اس میں دل قربان اس میں جان بھی قربان، اس میں دل قربان اس میں جان بھی قربان ہے۔ ایس ایس پی صاحب، قوم کی تعمیر کے لیے ایک ایک قدم جو آپ یہاں آئے ہیں وہ عبادت میں شمار ہوا ہے، اس لیے کہ یہ پاکستانی قوم کا مستقبل ہے۔ یہ ہیں تو یہ فرقہ واریت کو بھی ختم کریں گے، یہ قوم کے معمار زبان اور نسل کو بھی ختم کریں گے، یہ بتائیں گے کہ یہ وہ پاکستان ہے جو اصل قائد اعظم نے بنایا تھا، اور قائد اعظم کا اصل پاکستان یہ تھا کہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یاد رکھیے کہ مکمل کوئی شے نہیں ہوتی، یہ پاکستان جب تک مکمل نہیں ہوا جب تک قائد اعظم نے علماء اکرام سے مشاورت نہیں کی۔ راجہ صاحب محمود آباد بھی تھے جن کے سرمایے سے پاکستان بنا، تو شبیر احمد عثمانی بھی تھے اور بہت سارے علماء بھی شامل تھے۔ علماء کے بغیر کوئی چیز اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ محترمہ، جب پاکستان نہیں بن سکتا تو علماء کے بغیر نہ کوئی اسمبلی چل سکتی ہے، لال دین صاحب، نہ کوئی سینٹ چل سکتا ہے۔ اس لیے کہ علماء کی رہنمائی، آج میرا یہاں اس کھیل کے اس میدان میں ان بچوں کے ساتھ، اس قوم کے سپاہی کے ساتھ جو اتنا بڑا کام کر رہا ہے، خدا کی قسم یہ آئندہ آنے والی قوم جب اس کا نام لے گی تو وہ یاد کریں گے کہ اورنگزیب سلطان کون تھا اور کیا کر گیا۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں جو حکومتی عہدوں پہ بھی ہیں، جو جہاں بھی ہیں، کہ اورنگزیب کے ساتھ قدم بقدم چلیں، اس لیے کہ اس کا ہر قدم پاکستان کے لیے اور ہماری جانیں قربان پاکستان کے لیے، پاکستان افواج کے لیے، پاکستان سندھ پولیس کے لیے، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جو پاکستان کے دشمنوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی ہیں۔ اس کا تو ایک بیٹا بھی شہید ہوا ہے، شہادت اس کے گھر میں بھی ہے، اس کے باوجود یہ آج بچوں کی تعمیر کر رہا ہے۔ آرمی پبلک اسکول کے بچوں میں ہمارے اورنگزیب سلطان کا بچہ بھی شہید ہوا ہے، تو اس کو یہ مرتبہ بھی ہے کہ یہ ایک شہید کا باپ ہے۔ قیامت کے دن شہید گواہی دے گا، شہادت کی معنی گواہی، ان کے بیٹے کا لہو گواہی دے گا کہ وہ درندے جنہوں نے معصوم پھولوں کو مسل دیا وہ انسان نہیں، درندے ہیں۔ آئے مل کے نعرہ لگائیں، پاکستان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور اس نعرے کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی۔ نعرہ حیدری! کوشش انہوں نے کی ہے بالکل یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے ہاں جذبوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ صرف قدردانوں کی کمی ہے۔ باقی میں کہتی ہوں کہ ہر طرح کا ٹیلنٹ یہاں موجود ہے۔ ان کی جو یہ ایک طرح سے ہمیں بالکل کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ہمیں بالکل لاجواب سروس، کیا کہوں میں اس بارے میں، کہ جو انہوں نے ہمیں تو سمجھنے کے شرمندہ کر دیا کہ ہم گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے لیے جو ہے وہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ اتنی خوبصورت شام، اتنا اچھا موسم، جو کہ ننھے منھے میرے بیٹے اور بیٹیوں نے جو یہ تقریب منعقد کی ہے، اس چیز کی اگر یہ مبارکباد نہ دیں تو میرے خیال زیادتی ہوگی۔ ان سب پوری ٹیم کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ سب کو یہ خوبصورت شام نوجوانوں کے نام، طلباء کے نام منعقد کرنے پر مبارکباد ہو۔ اور یہ حقیقت میں یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک نماز ہے۔ جو ننھے منھے بچے جو درخت یا پودا لگا ہوا ہے اور اس کو پانی دے رہے ہیں، اور وہ پانی دے کر موسم کے لحاظ سے کہ وہ پھل جو ہے کہ یہاں کے شہر کراچی کے میری مائیں اور بہنیں اور نوجوان اور بزرگ کھائیں گے۔ پولیس شعبہ رینجرز
और शोधा गुमनाम सिपाहियों तक पहुंचा, शोधा आर्मी पब्लिक स्कूल और हमारे वो सियासतदान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, उन सब के लिए तहरीक पाकिस्तान से लेके आज तक तमाम शोधा के लिए के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और मेरे पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दो, आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक इंसानी माशरे के लिए, इंसानियत के लिए, और ख़ास तौर पे जो इस माशरे कराची में रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा इवेंट है। बस मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये इसी तरह कोशिश करते रहें और ये जो नन्हे नन्हे फूल हैं ये बढ़कर एक खुशबूदार, एक अच्छा माशरा तश्कील देने वाले इंसान बन सकें। क्योंकि हमारे माशरे में ना बहुत बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं, कोई शख्स कहीं भी किसी से भी महफूज नहीं है। तो लिहाजा अगर ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे, इस तरह से सारे प्रोग्राम्स चलते रहेंगे तो ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। बहुत शुक्रिया। अपनी असेंबली की स्पीच में भी ये बात कही, सबने बजट के तमाम दिगर चीज़ों पे बात की कि बजट में इजाफा होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ सिंध पुलिस की बात की कि सिंध पुलिस के बजट में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मुहाफिज नहीं होंगे तो हम सो नहीं पाएंगे। ये लोग जागते हैं तो हम सोते हैं। चाइल्ड के हवाले से जिस तरह मेरा काम है पता है, औरंगजेब को किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले से जिस तरह हम बच्चों पे काम करते रहे, अभी भी मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और एसएसपी साहब के कान में जो है वो चीज़ डाली जो परसों से जिस पे मैं काम कर रही हूँ। एक केस मेरे पास आया हुआ है तो मैंने यहाँ भी मौके से फ़ायदा उठाया और टाइम ज़ाया नहीं किया, फ़ौरन किए। उसका ये मतलब नहीं होता कि पूरा डिपार्टमेंट जो है वो ख़राब है। आईजी साहब भी बहुत मोहतरम है मेरे लिए, और ज़ाहिर है होम डिपार्टमेंट के हवाले से जिस तरह मैं उनकी कमेटी की मेंबर हूँ, पब्लिक सेफ्टी कमीशन की मेंबर हूँ, तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे मामला हमारे पुलिस से ही चलते हैं, पुलिस ही हल करती है। औरंगजेब को मैं मुबारकबाद दूंगी उस तमाम परेशानियों के बावजूद, उस तमाम मुश्किलात के बावजूद जिस तरह ये काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हमारा वो असासा जो बच्चों और बूढ़ों की शक्ल में मौजूद है उसकी हिफाजत करना इन्होंने जिस तरह ठेका लिया हुआ है, उठाया हुआ है, तो मैं समझती हूँ ये बच्चे जो कल का असासा है मेरे मुल्क का, मेरे सूबे का, मेरे शहर का, यह असासा है और इस असासे को कायम रखने के लिए हम ज़रूर इस पे काम करेंगे। मेरी ख्वाहिश है, यहाँ पर मौजूद है अनवर लालडीन साहब भी, सफ़ीर भी, जो कि बिलावल हाउस को भी इस वक्त तर्जुमान करते हैं, मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं इन दोनों से भी मदद लूँगी कि सेनेटर साहब और सफ़ीर हम सब मिल के अपने मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से एक मुलाकात करें, और हम चाहते हैं कि कराची का कोई एक पार्क या कोई एक स्टेडियम जो है वो हम औरंगजेब सुल्तान के नाम पर रख सकें। मरने के बाद तो लोग रखते हैं नाम, हम चाहते हैं हम जीते जी ट्रिब्यूट दें अपने उन लोगों को जो लोग वाकई कौम के लिए काम कर रहे हैं। तो पहला दिन जो मेयर साहब का होगा ऑफिस में, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने मेयर से बात करके या डिप्टी मेयर से बात करके हम एक ऐसा कोचिंग सेंटर इन बच्चों के लिए कर सकें जो बच्चे ग्रास रूट से आ रहे हैं। ऊपर के लेवल पर तो सारे ही बच्चे खेल रहे हैं। हम मुबारकबाद देंगे कल ककड़ी ग्राउंड के लिए कि जिस तरह ककड़ी ग्राउंड को इंटरनेशनल स्टेडियम का दर्जा मिल गया है, वहाँ पर भी वो टीमें ये जहन से निकाल दें कि वहाँ सिर्फ बड़े लोग जाएंगे, नहीं, वहाँ पर वो ग्रास रूट के बच्चे जो अपनी जगह से जगह बनाते हुए जाएंगे ऊपर की सतह तक, वो उस इंटरनेशनल स्टेडियम के मेयार में जाके भी खेल सकेंगे जिसके लिए वो सिर्फ तस्वुर कर सकते हैं। मुबारकबाद दूंगी मैं उस टीम को जो आ रही है, मुझे बताएंगे सुल्तान के वो कब आ रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी बिल्कुल करेंगे गवर्नमेंट के साथ मिलके। हम सिंध पुलिस से भी मदद लेंगे कि वो भी हमें फंड की शक्ल में अगर उन बच्चों के यूनिफॉर्म, आईजी साहब को मैसेज हमारा दीजिएगा कि कुछ हम यूनिफॉर्म अगर कर सके, हमने पिछली मरतबा हमने किए थे, अगर कुछ कर सके तो हम इन बच्चों के लिए वो भी करेंगे। एक टीम सुल्तान फिर आ रही है नवंबर में यूके से, जो कि वो क्रिकेट वही अभी उन्होंने इवेंट करवाए थे पिछले साल भी, अब वो फिर आ रहे हैं। आप मुझे याद दिलाइएगा उस इवेंट में भी कि अगर जिम खाना वगैरह में मौका मिला तो मैं इन बच्चों को वहाँ पर भी ले जाऊँ, ताकि ये वो इंटरनेशनल जो खिलाड़ी आएंगे उनके साथ भी एक मैच इनका रखवाया जा सके और ये खेल सकें। जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं हाजिर हूँ। एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगी आप सब बच्चों का, जिस तरह उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ
नहीं होता। और हाँ मुझे कह लेने दीजिए कि इन्हीं तमाम खूबियों का मजमुआ मेरे उस्ताद औरंगजेब सुल्तान हैं, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। एशियन एथलेटिक चैंपियन मलेशिया में गोल्ड मेडल, साउथ एशियन गेम्स मैराथन में सिल्वर मेडल, सिंध चैंपियन, नेशनल चैंपियन, पीएमए मैराथन चैंपियन, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम दर्ज है, जिनका रिकॉर्ड 2004 से आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। वजीर आजम पाकिस्तान, सदर अमेरिका से बेस्ट एथलेटिक अवार्ड मिला। पाक आर्मी की यह क्षति के लिए 6 मरतबा पैदल सफर किया और न जाने कितने गोल्ड मेडल और अवार्ड अपने नाम किए। हाँ वही मेरे उस्ताद हैं, औरंगजेब सुल्तान हैं, जिनके लहजे में हम शागिर्दों के लिए मिठास, निगाहों में शफकत और रवैये में प्यार है, जिनका किरदार, गुफ्तार और ओलुल अज़्म में हमारे लिए मशअले राह है। मेरा अजीम उस्ताद वो है जो हाथों में जुगनू लिए शम्सो कमर की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, ये महरे ताबा से जाके कह दो, ये महरे ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। सदर आली वकार, जो हम सब शागिर्द यहाँ आज मौजूद हैं, हम वो हैं जो खेल के मैदान से दूर भागते थे, जिनको स्पोर्ट्स के अलिफ बे भी ना मालूम थी, जिनका ना शौक था और ना ही खेलने का तरीका आता था, और अगर शौक था भी तो कभी हिम्मत ना की थी। लेकिन आज शौक भी, जज्बा भी, लगन भी और मालूमात भी है। आज अगर कोई चैलेंज करे तो उसकी आंखों में आंखें डालकर कह सकते कि हम भी किसी से कम नहीं। और ये यकीन और इत्मीनान देने वाली हस्ती मेरे अजीम उस्ताद सर औरंगजेब सुल्तान हैं। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहाँ से। जनाबे उस्ताद साहब, जिंदगी में बहुत ही कम लोगों को अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करने का मौका मिलता है, और बहुत ही खुश नसीब होते हैं वो जिनके मोहसिन उनके उस्ताद होते हैं। मैं भी आज इस पुरवकार मौके पर ये जानते हुए कि आपकी मेहरबानियों का हक अदा ना हो सकेगा, हम तमाम की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, हर इस मोहब्बत और शफ़क़त के लिए, यकीन एतमाद के लिए और एहसान के लिए जो आपने हम पर किए, और इन तालियों, शाबाश और इनाम के लिए जो सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुई। जितनी भी ज़माने से मुझे दाद मिली है, जितनी भी ज़माने से मुझे दाद मिली है, मेरा ईमान है कि बाई से उस्ताद मिली है। शुक्रिया।